নালন্দা পূব ভাৰতৰ প্ৰাচীন আৰু মধ্যযুগীয় মগধত অৱস্থিত বিখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিহাৰ আছিল। নালন্দা মহাবিহাৰক প্ৰাচীন বিশ্বৰ অন্যতম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিক্ষণ কেন্দ্ৰ হিচাপে বহুলভাৱে গণ্য কৰা হয়। এই মহাবিহাৰ পাটলিপুত্ৰৰ পৰা প্ৰায় 90 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পূৰ্বে ৰাজগৃহ চহৰৰ ওচৰত অৱস্থিত আছিল। 427 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ত্ৰয়োদশ শতিকালৈকে কাৰ্যক্ষম ৰূপত থকা নালন্দাই পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ শতিকাত কলা আৰু শিক্ষাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰসাৰিত কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। সেই সময়ক পণ্ডিতসকলে ভাৰতৰ সোণালী যুগ বুলি অভিহিত কৰে। গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট কুমাৰ গুপ্ত প্ৰথমে 427 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আশে-পাশে নালন্দা মহাবিহাৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। বৌদ্ধ আৰু অবৌদ্ধ উভয় সম্প্ৰদায়ৰ বহুতো ভাৰতীয় আৰু জাভাৰ শাসকে ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। পাল সাম্ৰাজ্যৰ শাসকসকলেও 750ৰ পৰা 1161 খ্ৰীষ্টাব্দত নালন্দাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। পালসকলৰ পতনৰ পিছত নালন্দাৰ সন্যাসীসকলক বুধগয়াৰতীসকলে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। সম্ভৱতঃ প্ৰায় 1200 খ্ৰীষ্টাব্দত মহম্মদ বাখতিয়াৰ খিলজীয়ে নালন্দা আক্ৰমণ কৰিছিল। তাৰ পিছতো কেইবা দশক জুৰি কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল। প্ৰায় 750 বছৰ ধৰি নালন্দাৰ অধ্যাপকসমূহৰ ভিতৰত মহাযান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ কিছুমান অতি পূজনীয় পণ্ডিত আছিল। মঠৰ সৈতে জড়িত অধ্যাপক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত ধৰ্মপাল, নাগাৰ্জুন, শিলভদ্ৰ আদি উল্লেখযোগ্য। নালন্দাৰ পাঠ্যক্ৰমত মধ্যমক, যোগাচাৰ আৰু সৰ্বাস্তিবাদৰ দৰে প্ৰধান বৌদ্ধ দৰ্শনসমূহৰ লগতে বেদ, ব্যাকৰণ, চিকিৎসা আদি অন্যান্য বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। মহাবিহাৰৰ এটা বিখ্যাত পুথিভঁৰাল আছিল। এই পুথিভঁৰাল হিউৱেনচাং আৰু ইজিঙৰ দৰে পৰিব্ৰাজকে পূব এছিয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা সংস্কৃত গ্ৰন্থসমূহৰ এক মূল উৎস আছিল। নালন্দাত ৰচিত বহু গ্ৰন্থই মহাযান আৰু বজ্ৰযান পন্থা বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ধৰ্মকীৰ্তিৰ ৰচনা, শান্তিদেৱৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থ আৰু মহাবৈৰোচন তন্ত্ৰ আদি উল্লেখযোগ্য। প্ৰাচীন নালন্দাৰ স্থান ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ। 2010 চনত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰাচীন বিশ্ববিদ্যালয়খন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আৰু ৰাজগিৰত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নামৰ এখন সমসাময়িক প্ৰতিষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ভাৰত চৰকাৰে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনক ৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে। নালন্দা ভাৰতৰ এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী। ই ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শনাৰ্থীৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ। 1917 চনত মুকলি কৰা নালন্দা প্ৰত্নতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয় উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন সামগ্ৰীৰ লগতে ওচৰৰ ৰাজগিৰৰ পৰা উন্মোচন কৰা সামগ্ৰীসমূহ সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। এই স্থানত উদ্ধাৰ হোৱা 13,463টা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 449টাহে সংগ্ৰহালয়ৰ 4খন গেলেৰীত প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে। জুয়ানজাং মেমৰিয়েল হল বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্যাসী আৰু পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাং বা জুয়ানজাঙৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰত চীনৰ যৌথ উদ্যোগত জুয়ানজাং মেমৰিয়েল হল নিৰ্মাণ কৰা হয়। চীনা সন্যাসীজনৰ মূৰৰ হাড়েৰে গঠিত এটা ধ্বংসাৱশেষ স্মৃতিসৌধত প্ৰদৰ্শিত হৈছে। নালন্দা মাল্টিমেডিয়া সংগ্ৰহালয় খনন কৰা স্থানৰ কাষত ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত নালন্দা মাল্টিমেডিয়া সংগ্ৰহালয় অৱস্থিত। মহাবীৰ বা বৰ্তমান হৈছে জৈন ধৰ্মৰ 24তম তথা শেষৰজন তীৰ্থকৰ। জৈন পৰম্পৰা মতে মহাবীৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6ষ্ঠ শতিকাৰ বিহাৰৰ এক ৰাজ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। 30 বছৰ বয়সতেও পৰম জ্ঞানৰ সন্ধানত সংসাৰৰ মোহ ত্যাগ বা ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল। প্ৰায় 12.5 বছৰ তেওঁ পৰম জ্ঞানৰ সন্ধানত কঠোৰ তপ আৰু ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিছিল। তেওঁ প্ৰায় 30 বছৰ সাধনাৰ পৰা প্ৰাপ্ত জ্ঞান লোক সমাজত বিতৰণ কৰি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 6ষ্ঠ শতিকাত নশ্বৰ দেহ ত্যাগ কৰে। জৈন পৰম্পৰাৰ বাহিৰে কিছুমান পণ্ডিত যেনে কাৰ্ল পটাৰে বিশ্বাস কৰে যে মহাবীৰৰ জীৱনী সম্বন্ধীয় তথ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহয় আৰু তেওঁ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 5ম শতিকাৰ গৌতম বুদ্ধৰ সমসাময়িক আছিল। মহাবীৰ 72 বছৰ বয়সত নশ্বৰ দেহ ত্যাগ কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হয়। বুদ্ধগয়া হৈছে বিহাৰ ৰাজ্যৰ এখন ঠাই য'ত গৌতম বুদ্ধই জ্ঞান লাভ কৰিছিল। ইয়াত থকা মহাবোধি মন্দিৰটো বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ বাবে এক পবিত্ৰ স্থান।
বুদ্ধগয়াতে গৌতম বুদ্ধই বুদ্ধিবৃক্ষৰ তলত ধ্যান কৰি জ্ঞান লাভ কৰিছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। উক্ত স্থানসমূহত সুদূৰ অসমৰ পৰা গৈ কেৱল মহাজ্যোতি 24 লাইভ চেনেলৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্য সহকাৰে বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। सर, मेरा नाम संजय कुमार है। ये जो आप विश्वविद्यालय देखने जा रहे हैं ना, 1600 साल पुराना है। इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। जब कुमार गुप्त स्थापना किया था, उन्होंने जो एरिया लिया था ना, 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। अभी खुदाई के बाद यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाहर हुआ है, जो ये बुद्ध धर्म का कॉलेज है। योगा कॉलेज ना उस समय अलग थी, फिलॉसफी कॉलेज अलग था, मेडिकल कॉलेज अलग था। जुआफर गाँव, बेगमपुर गाँव, सरीचक गाँव, ये सब गाँव में विश्वविद्यालय के छोटे छोटे पार्ट मिले हैं सर जी। बड़ा पार्ट यहाँ है ना, जिसे आप देखने जा रहे हैं। उस समय यहाँ छात्रों की संख्या 10,000, प्रोफेसर 1500। शिक्षा पद्धति आज की तरह बड़ा क्लासरूम नहीं होता था ना सर जी। ये पेड़ के छांव में ना, बीच में गुरुजी, उनके चारों तरफ छात्र जमीन पर ही बैठ कर के लिखते पढ़ते थे। यानी कि शिक्षा पद्धति उस समय गुरुकुल सिस्टम थी। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला तीनों विश्वविद्यालय का आज भी जो हमारा शांति निकेतन है ना सर जी, वहाँ पेड़ के छांव में पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालय का जो मेन सब्जेक्ट था ना, बुद्धिज्म, योगा, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिकल ना उस समय हर्बल होता था, भाषा उस समय की पाली होती थी। ये सब इस विश्वविद्यालय का मेन सब्जेक्ट होता था। यहाँ पढ़ाने वाले जो मेन प्रोफेसर थे, उनमें से नागार्जुन, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, पद्म संभव, शांत रक्षित, धर्मकीर्ति, धर्मपाल, असंग, बसवंधु, आरदेव इस विश्वविद्यालय के मेन प्रोफेसर होते थे। विश्वविद्यालय के अंदर सर जी 3 लाइब्रेरी होती थी। बड़े लाइब्रेरी का नाम रत्न सागर, दूसरा लाइब्रेरी रत्न दधी और तीसरा रत्न रंजक। किताबें ना उस समय ताड़ पत्ते की बनती थी, भोज पत्ते की। पेपर का आविष्कार तो चाइना में हुआ था ना, पेपरिस घास से। यहाँ तो पोथी तैयार होता था। रत्न सागर लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत होती थी, जिसमें कि 90 लाख पुस्तक होता था। जब बख्तियार खिलजी वहाँ आग लगाया था, लाइब्रेरी 6 महीने तक जली थी। इसके बिल्डिंग को आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाई नहीं किया है कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग कहाँ है। सिर्फ वेंसन की किताब में उसका वर्णन मिला है। जलने का वर्णन मिनहाजुद्दीन सिराज की किताब तबकात नासरी में मिला है। यहाँ छात्रों का एडमिशन प्रक्रिया भी काफ़ी कठिन होता था। आज गेट कीपर अशिक्षित होते हैं ना सर जी। नालंदा का गेट कीपर ना उस समय काफ़ी स्कॉलर होता था, जो छात्रों का एडमिशन टेस्ट ऑन द गेट कंडक्ट करता था। उनके परीक्षा में केवल 10% छात्र ही पास होते थे, जिनका अंदर एडमिशन होता था। 90% छात्र जो गेट कीपर के परीक्षा में फेल हो जाते थे, गेट के बाहर से ही घर लौट जाते थे। आप ज़रा सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का गेट कीपर इतना स्कॉलर हो, वहाँ का प्रोफेसर और प्रिंसिपल में क्या क्वालिटी रहा होगा। विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। 1192 में सरजी तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जहां पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए थे। फिर मोहम्मद गोरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी, इन लोगों ने देश के विभिन्न भागों में लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने पूर्वोत्तर भारत। इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा बख्तियार खिलजी आए थे। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है, जहाँ उनका सैनिक शिविर होता था। वो दिन में लूटपाट करते थे, रात को अपने शिविर में सोने के लिए पहुँच जाते थे। जब उनको ये पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, बख्तियार खिलजी यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आए हैं। राहुल श्रीभद्र उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मेडिकल साइंस के। उससे उसने बताया कि आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। राहुल श्रीभद्र जो है ना, कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगा दिया। वो लोग पन्ने को सर जी ऐसे पलटी मारते हैं ना, दवा हाथ के सहारे उनके मुँह में गया, रोग ठीक हुआ। उन्होंने सोचा जब तक इतने स्कॉलर लोग रहेंगे, इन पर तो शासन करना भी मुश्किल होगा। नालंदा को उसने 1198, विक्रमशिला को 1200 AD में नष्ट किया। फिर वो लोग अपनी शक्ति एकत्रित करके सेन वंश पर आक्रमण किया, है ना। राजा का नाम था लखन सेन। हाँ, जब वो लोग बंगाल विजय के बाद उसने अपने भतीजे अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके उन्होंने आसाम पर भी आक्रमण। आसाम के जब उनको पता चला कि आसाम का राजा पृथु हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो तिब्बत के पठार में मुड़ जाते हैं। उनका वहाँ बहुत सारा सैनिक मारा जाता है। जब वो वापस लौट रहे थे, राजा पृथु को पता चला कि दुश्मन इधर से कमज़ोर होकर के आ रहा है। उसने नदी पर बांस का पुल बना करके उनके साथ युद्ध किया।
कहा जाता है बख्तियार खिलजी के सारे सैनिकों को काट काट करके उसने नदी में बहा दिया। जब बख्तियार खिलजी केवल 100 सैनिक के साथ वहाँ से जान बचा करके भागे, जब अपने भतीजे अली मर्दान के पास आए, उन्होंने देखा कि मेरा चचा घायल अवस्था में आया है, इसका इलाज कराएंगे तो राजा बन जाएगा। अली मर्दान ने बख्तियार खिलजी का सर काट दिया। जब मोहम्मद गौरी लौटने लगा 1206 में, उसने अपने नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के गद्दी पर बैठा के चला गया। विद्यालय कैसे रनिंग कर रही थी सर जी? जब सरकार उसके संचालन के लिए रेवेन्यू डोनेट कर रहे थे, जो गुप्त राजा लोग विद्यालय के संचालन के लिए 200 गांव का टैक्स डोनेट कर रहे थे विद्यार्थी के भोजन और प्रोफेसर के सैलरी के लिए, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया यानी स्लैब डायनेस्टी के लोगों ने देना बंद कर दिया। विद्यालय में पढ़ाई बंद हुई। बिल्डिंग बारिश, तूफान, भूकंप में धीरे धीरे गिर करके मिट्टी का पहाड़ बना। उसके बाद कोई साहित्य नहीं मिलता है जो कि नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। ह्वेनसांग यहाँ चाइना से पढ़ने के आर्कोलॉजी का गठन होता है ना 1861 में, उससे पहले पुरातात्विक चीज़ों को अंग्रेज लोग ना अपने क्वार्टर में लगाते थे और उनके साथ जब रिटायर होकर जाने लगते थे, चीज़ें इंग्लैंड चली जाती थी। लेकिन 1861 के बाद चीज़ों को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम बनाए जाने लगे और ज़मीन के नीचे से भी चीज़ों को खुदाई करके निकाला जाने लगा। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम जब ह्वेनसांग की डायरी का जब इंग्लिश वर्जन पढ़ा, उसको बिलीव नहीं हुआ कि ये चाइनीज आदमी सही लिखा है। उसको लगा था कहीं इसने कल्पना पे तो नहीं लिखा है। लेकिन जब उसने यहाँ पर उसमें रूट चार्ट था ना, उस रूट चार्ट के अनुसार जब यहाँ देखने के लिए आया, उसको पीरा विश्वविद्यालय मिट्टी का पहाड़ दिखा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जमीन के खुदाई से निकाले गए ना सर जी, उसी तरह नालंदा का भी खुदाई 1915 से 37 तक हुआ। 2 टर्म में खुदाई हुआ, एक 15 से 37 22 साल और दूसरा 1974 से 82, है ना। मतलब टोटल 30 साल के खुदाई के बाद 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया मिला है, जिसको अभी आप लोगों ने देखा। मैं इस कार्य के लिए डॉक्टर पारसमणि सिन्हा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 24 लाइव के लिए चैनल के लिए यहाँ पे आए नालंदा में, उन्होंने हमसे जानकारी ली। इस काम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। তেজপুৰৰ পৰা সন্তন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, মহাজাতি 24 লাইভ।